Yes, my dear, very good day to all of you. Thank you very much. You are most welcome here in the second part of note making and abstraction writing, that is summary writing. Yesterday I gave you the clear cut information about note making, that how to make notes of a paragraph, of a passage, that this is one of the most important question of your level that asked in the board examination. So it is asked for 8 marks and it has two parts, that is note making and summary writing. Note making and summary writing. This note making is divided into title for 1 mark, title writing for 1 mark, and second, that is note making this one is right now of 2 marks, abbreviation one marks, and now summary 4 marks. So this note making is divided into 4 parts, that is title, note making, abbreviations, and summary writing. I suggested you already, and these are the marks: 1 mark, 2 marks, 1 mark, and 4 marks. Thus total 8 marks. 8. Eight marks question it is. Now in my previous video I suggested you how to make notes from the passage and from the paragraph. At least 4 to 5 paragraphs must be made for your note making. Therefore, as I told you, according to that, you have to take the pencil or pen in your hand while reading the passage and make the underline which is important for the notice writing and note making of the paragraph. That is the main thing of the paragraph. So it will be easy for you to make headings, subheadings, and subheadings. You have to underline. Without underlining, if you think yourself that without underlining I can able to understand and I can understand it well, it will be your fault and note making will be wrong. Therefore, you should be very much careful regarding your position, regarding your 8 marks, and regarding the understanding of the passage. Passage is easy to you to understand, but you have to make a proper methodology for it. And after drawing the proper underlines, after underlining the words, phrases, main words, and sub phrases, sub points, should write in a proper sequence. If you are writing in the proper sequence, you will be able to write notes.
Just you should not be much confused regarding this. It is one of the easiest way to make notes. Note making is the very easiest process. It's not a hard process. As you are habitual to make notes, make hints of your other subjects as you go through. Now you underline in the book, you write something into the book or in the diary or in the notebook, and this process is the easy process to you to understand and to remember the things. So in the same way, in unseen passage, the same work must be done in order to understand the passage well. So the notes can be different from one to another student. It will not be the similar one. Someone may write the first point and it may be yours second or third point or the last point, I suppose, but it is not sure, it is not certain. Sometimes the student write the similar things, approximate similarity is found. It is dependent on the understanding level of the student for the passage. As much as you understand, so as you be able to make notes of it. And here, read the passage carefully and answer the questions that follow, or read the passage and answer the questions given below. Read the passage and answer the questions given below. Read the passage and answer the questions given below. ये आपको एक अनसीन पैसेज दिखाई देगा। तो अब मैं आपको इसको एक प्रैक्टिस के माध्यम से, अब तक तो केवल ओरल बात बताई गई है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या निशान लगाना है, क्या नहीं निशान लगाना है, तो उस पर हम बात करते थे। लेकिन अब जो है हम I am going to read a passage for you. I am going to read a passage for you, and as soon as possible I'll include the passage in the video, and also on behalf of it I'll assign you a work if possible, that is. The passage is very easy for you to understand. This is a common practice of each and everyone. You generally practice it, you generally see it, you generally listen about it, and the passage is very common. I have taken the commonest passage only because of your understanding, that your understanding must develop on behalf of it, कि आप इस पर अपने स्वतंत्र विचार से कुछ समझ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो लेट अस सी द पैसेज।
to live in harmony with oneself and the environment is the wish of every human. However, in modern times, greater physical and emotional demands are constantly placed upon many areas of life. More and more people suffer from physical and mental tension, such as stress, anxiety, insomnia, and there is an imbalance in physical activity and proper exercise. This is why methods and techniques for the attainment and improvement of health, as well as physical, mental, and spiritual harmony, are of great importance, and yoga meets this requirement. तो आपने बेसिकली ये देखा होगा इसमें कि जितनी भी एंजाइटी है, टेंशन है, अनिद्रा है, सोमनिया सोमनिया है, हाँ, वो अनिद्रा कहते हैं इसको, मतलब स्लीपलेसनेस, सोने की बीमारी जो होती है। तो ये क्यों होता है? एंजाइटी होती है, सोमनिया होता है, स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी प्रभावित होती है। तो इन सब ये सब जो है वो कॉमन चीज़ें हैं, मनुष्य में होती हैं। तो इसका एक उपाय बताया गया है कि क्या है, तो टेक्निक्स इम्प्रूव्ड ऑफ हेल्थ एज वेल एज फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हार्मनी, माने एकता कहाँ ये मिले, तीनों चारों ये एकताएँ कहाँ मिले, कैसे मिले, तो आर अ ग्रेट इम्पॉर्टेंस एंड योगा मीट्स दिस रिक्वायरमेंट, यानी कि योगा इन सब चीज़ों को दूर करता है। तो सबसे पहले आपका ये जो पैसेज मिल रहा है ये आपको योगा पर मिल रहा है। अब आपके माइंड में ये चीज़ें मेकअप हो जानी चाहिए कि ये पैसेज लगभग किसके ऊपर लिखा गया है। इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा लिखा गया है कि डेली यूज इन योगा लिखा हुआ है कि योगा कीप्स और हेल्थ बेटर, या योगा कीप्स अस अवे फ्रॉम, ये चीज़ें मतलब इन चीज़ों से हमको दूर रखता है। ठीक है, तो ये एक तरह से अगर हम खास करके इस पैसेज के हेडिंग की बात करें तो योगा से संबंधित इसकी हेडिंग होनी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। हेडिंग अर्थात टाइटल। ठीक है, तो ये जो है योगा से हम समझ सकते हैं कि योगा एक वर्ड है जो हमारी टाइटल हो सकती है, लेकिन यहाँ यह कहा गया है कि सिंगल वर्ड शुड नॉट बी द टाइटल। ठीक, तो आपने योगा लिखा है, योगा के बाद आगे बढ़ाइएगा, आपको जो भी समझ में आएगा, ठीक है, जो भी समझ में आएगा कि योगा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, योगा हमारी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है, या योगा हमारे तमाम बीमारियों को दूर रखती है, योगा हमें फिट रखती है, तो अब आप इसके आगे बढ़ा सकते हैं। एंड टाइटल विल बी करेक्ट एट एनी कॉस्ट इफ़ यू हैव रिटन। अगर आपने लिखा है तो ये टाइटल, योगा शब्द लिखा है और योगा के आगे मतलब आगे कुछ और भी लिखा है, तो योर टाइटल विल बी वेरी वेरी एप्रोप्रिएट। ठीक है, वेरी वेरी एप्रोप्रिएट। हम कुछ ऐसे भी वर्ड्स आपको बताएंगे जिसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इन चीज़ों को आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि मेंटल टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, एसोमनिया, इम्बैलेंस इन फिजिकल एक्टिविटी, इसको, और ये फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल हार्मनी, ये योगा मीट्स दिस रिक्वायरमेंट। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं और अपने नोट मेकिंग में इसको ला सकते हैं। चलिए हम सेकेंड पैराग्राफ पे चलते हैं। द वर्ड योगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम संस्कृत एंड मीन्स टू ज्वाइन, टू यूनाइट। योगा एक्सरसाइज हैव अ holistic effect and bring body, mind, consciousness and soul into a balance.
आप इनको अंडरलाइन कर सकते हैं। अभी हम ये पैसेज ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको इस पर बताऊंगा। इन दिस वे योगा assists us in coping with everyday demands, problems and worries. Yoga helps to develop a greater understanding of ourselves, the purpose of life and a relationship with God. अब देखिए यहाँ इसने क्या कहा कि योगा कहाँ से ओरिजिनेट है। अब आप एक पॉइंट में ये अंडरलाइन कर सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ योगा, किसी भी चीज़ को हम अगर बताते हैं तो एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस के रूप में दिखाते हैं, तो हम इसके ओरिजिन को बताते हैं। तो ओरिजिन इसका कहाँ है, तो ओरिजिन इसका कहाँ से है, तो संस्कृत लैंग्वेज से है। योगा की ओरिजिन कहाँ से है, तो ये संस्कृत लैंग्वेज से है। तो इसका भी आप अंडरलाइन कर लिए। अब आगे क्या कहता है, होलिस्टिक इफेक्ट एंड ब्रिंग बॉडी माइंड कॉन्शियसनेस एंड सोल इनटू अ बैलेंस। होलिस्टिक माने पूरा होल, संपूर्ण बैलेंस रखता है। योगा हमें एक संपूर्ण बैलेंस देता है। जैसे मिल्क एक संपूर्ण भोजन हो जाता है, क्योंकि इसमें तमाम सारे मिनरल्स लगभग लगभग मिलते हैं दूध में। ठीक उसी तरह से योगा हमको हर प्रकार की शारीरिक बैलेंस दे देता है, सारे इम्बैलेंस को ख़त्म कर देता है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, इसको ख़त्म करे। इंसुलिन का डेवलपमेंट है बॉडी में, वो सही हो जाता है। लीवर की फंक्शनिंग, हार्ट की फंक्शनिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, बोन्स, जॉइंट्स, ये डाइजेस्टिव सिस्टम्स, ये सारे सिस्टम्स जितने बॉडी में काम करते हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमको अलाइव रखने के लिए, जीवित रखने के लिए, उस सारे में सब बैलेंस बन जाता है। किससे, तो योगा से। ये इसका इम्पॉर्टेंस और ओरिजिन बताया जा रहा है कि योगा से ये चीज़ें होती हैं। तो आप इसके पूरे को आप एक तरह से अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे संस्कृत हो गया, ओरिजिन्स फ्रॉम संस्कृत हो गया, टू ज्वाइन एंड यूनाइट हो गया। अब इसके बाद होलिस्टिक इफेक्ट एंड ब्रिंग बॉडी माइंड कॉन्शियसनेस एंड सोल इनटू अ बैलेंस, ये पूरा अंडरलाइन कर सकते हैं। उसके बाद आगे कर सकते हैं, इन दिस वे योगा असिस्ट से कर सकते हैं, असिस्ट्स इन कॉपिंग विथ एवरीडे डिमांड्स, कॉपिंग विथ एवरीडे डिमांड्स को कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स एंड वरीज। योगा हेल्प्स, अब क्या हेल्प करता है, डेवलप अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवरसेल्व्स, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। द पर्पस ऑफ लाइफ एंड आवर रिलेशनशिप विथ गॉड, इसको भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये सेकंड पैराग्राफ में देखा कि किस तरह से ये योगा हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, आप आगे चलते हैं। ऑन द स्पिरिचुअल पाथ योगा लीड्स अस टू सुप्रीम नॉलेज। स्पिरिचुअल पाथ पर जब हम आध्यात्मिक पाथ पर चलते हैं, आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं, तो क्या सुप्रीम नॉलेज की तरफ ले जाता है। कौन, योगा। यानी कि जिसे मेडिटेशन जब हम करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब मेडिटेशन करते हैं तो हम सुप्रीम नॉलेज की तरफ जाते हैं। सुप्रीम नॉलेज किसको इंडिकेट करता है, तो वो मेडिटेशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, सुप्रीम नॉलेज एंड इटर्नल ब्लिस in the union of the individual self with the universal self, with the universal, मतलब एकदम हम अपने आप में खो जाते हैं। मेडिटेशन के समय में हम अपने आप को बिल्कुल खो देते हैं और शून्य में चले जाते हैं। इस तरह से योगा हमारे लिए बहुत ही ये फ़ायदेमंद हो जाता है और हमें हमारे कॉन्सेंस लेवल को, हमारे ये धैर्य को इसे बहुत मजबूती देता है, पेशेंस को बहुत मजबूती देता है। जैसे विश्व यानी आदमी चिड़चिड़ा नहीं हो पाता है, आदमी बहुत धैर्यवान हो जाता है, सीरियस हो जाता है, गंभीर हो जाता है, हैं?
हर चीज़ों पर विचार करने की क्षमता उसकी बढ़ती है, रीजनिंग पावर बढ़ता है। तो ये मेडिटेशन का हमारे काम होता है। तो कहता है इंडिविजुअल सेल्फ विद द यूनिवर्सल सेल्फ। आप अपने आप को संपूर्ण संसार से जोड़ लेते हैं जब आप इस तरह से मेडिटेशन में होते हैं। योगा इज़ दैट सुप्रीम कॉस्मिक प्रिंसिपल। कॉस्मिक प्रिंसिपल है, बहुत यूनिवर्सल है, वर्ल्ड वाइड है, कॉस्मिक है, यूनिवर्स से संबंधित है, हैं, उससे हमको यूनिवर्स से जोड़ देता है। यानी कि हम सन से जुड़ जाते हैं, हम जुपिटर से जुड़ जाते हैं, हम सैटर्न से जुड़ जाते हैं, हम किसी भी प्लैनेट से जुड़ जाते हैं, मतलब केवल एक मानसिक स्तर से, ठीक है। हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, हम अपने आराध्य से जुड़ जाते हैं, हम अपने प्रभु से जुड़ जाते हैं इत्यादि। नाउ प्रिंसिपल, इट इज़ द लाइट ऑफ लाइफ। ये क्या है बताया, इट इज़ अ लाइट ऑफ लाइफ, ये जीवन का ही प्रकाश है। क्या? तो योगा है। तो आप इस तरह से इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, कॉस्मिक नॉलेज के बारे में, सुप्रीम नॉलेज के बारे में, इट इज़ लाइट ऑफ लाइफ के बारे में कह सकते हैं। द यूनिवर्सल क्रिएटिव कॉन्शियसनेस दैट इज़ ऑलवेज अवेक एंड नेवर स्लीप्स। मतलब कभी ऐसी चेतना जो हमारी कभी ख़त्म नहीं होने वाली होती है, नेवर स्लीप्स, दैट ऑलवेज वॉज ऑलवेज इज़ ऑलवेज विल बी। हर कोई चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए शाश्वत रूप से हमारे पास बनी रहती हैं अगर हम योगा को अपने जीवन में अपनाते हैं। देखिए, हम यहाँ किसी प्रकार का कोई एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि द एग्जाम्पल्स शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ आवर नोटिस राइटिंग एंड नोट मेकिंग। हमारे नोट मेकिंग में किसी भी प्रकार का एडिशनल एग्जाम्पल नहीं चलता है, और अगर इसमें भी कोई एग्जाम्पल दिया हो तो कोशिश करके उसको अवॉइड करिए, उसको अपने नोट मेकिंग में मत लिखिएगा। यू आर सजेस्टेड नॉट टू राइट एनी एग्जाम्पल फ्रॉम द पैसेज दैट इज गिवन इन द अनसीन पैसेज, ठीक है। तो इस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। ऐसे अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब इस पर आते हैं, थर्ड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। जो हमारा ख़त्म हो गया है। अब नेक्स्ट, मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो इन इंडिया। देखिए, कुछ ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस देने जा रहा है। पैसेज में क्या है, कुछ ऐतिहासिक दे रहा है। ऋषिज, अब ऋषि कौन कहा गया है? वाइज मैन एंड सेंट्स, जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे और हर्मिट्स थे। सेंट यानी कि साधु सन्यासी, हैं, बड़े बड़े पुजारी, बड़े बड़े महात्मा, ठीक। तो ये क्या है? एक्सप्लोर्ड नेचर एंड द कॉस्मस इन देयर मेडिटेशन। कॉस्मस और नेचर का एक्सप्लोर किया, खोजा, अन्वेषण किया, खोज निकाला ये ऋषियों ने। कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज के बारे में आप तो फिजिक्स पढ़ते होंगे, पढ़े ही होंगे 10th क्लास में फिजिक्स, 11th क्लास में भी पढ़े होंगे। तो कॉस्मिक रेज जो होता है, तो कॉस्मिक रेज को और यूनिवर्स को, इसमें सबको समझ लिया था, जान लिया था, एक्सप्लोर कर लिया था। किसके माध्यम से? थ्रू द मेडिटेशन, आज्ञा चक्र, ज्ञान चक्र, कुंडलिनी जागरण, ठीक है, जो बस केवल मेडिटेशन के माध्यम से सब कुछ जान जाते हैं। आपने शक्तिमान देखा हो, फिलहाल मैं कोई उदाहरण नहीं देना चाहता, चलिए। They discovered the laws of material and spiritual realms and gained an insight into the connection within the universe. आंतरिक और बाह्य ज्ञान के बारे में वो खूब अच्छी तरह जान गए और संसार से उन्होंने इसको जोड़ दिया। They investigated, क्या क्या खोजे,
cosmic laws, the laws of nature, and the elements, life on earth, and the power and energies at work in the universe. ये सारी चीज़ें हमारे ऋषियों महर्षियों ने खोज निकाला था। तो इसमें भी आपको जो अच्छा लगता है, जो समझ में आता है, जो आप बताना चाहते हैं, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। और एक सामान्य इंट्रोडक्शन के रूप में कि ऋषिज एक्सप्लोर्ड, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा में आप इसको कर सकते हैं। फिर नहीं भी कर सकते हैं, कर भी सकते हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। बोथ इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड ऑन ए स्पिरिचुअल लेवल, दोनों पर, एक्सटर्नल बाह्य संसार और आंतरिक, बाह्य संसार और आंतरिक संसार दोनों को उन्होंने जोड़ दिया था अपने इस मेडिटेशन के माध्यम से, जो उन्होंने एक्सप्लोर किया, जो इन्वेस्टिगेट किया, जो अन्वेषण किया। द यूनिटी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, यूनिटी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, आपने इन सब चीज़ों के बारे में भी सोचा होगा, देखा होगा, समझा होगा कि मैटर है, इसमें क्या है। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। द यूनिटी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स and the effect of the elementary powers have been described and explained in the Vedas. तो ऋषि महर्षियों ने जो पता किया, जो समझ में उनके आया, जो जान पाए, उसको उन्होंने कहाँ लिखा? उसको उन्होंने वेद में लिख दिया। जो वेद धर्म ग्रंथ है उसमें उन्होंने लिख दिया। चलिए, नाउ मच ऑफ दिस नॉलेज हैज़ बीन रीडिस्कवर्ड, मच ऑफ दिस हैज़ बीन रीडिस्कवर्ड, तो क्या रीडिस्कवर्ड किए? एंड कन्फर्म्ड बाय मॉडर्न साइंस, दोबारा इसको डिस्कवर करके मॉडर्न साइंस से जोड़ के देखा गया। ठीक, नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। From these experiences and insights, a far-reaching and comprehensive system known as yoga originated and gave us valuable practical instructions for the body. तो योगा यहाँ से निकल कर के आया और हमारे शरीर को सही आर्डर देने के लिए, सही बैलेंस बनाने के लिए यहाँ से खोज कर निकाला गया। प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉडी, जो प्रैक्टिकली इंस्ट्रक्शन होता है, जैसे ब्रीथिंग, कंसंट्रेशन, रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। नाउ द सिस्टम योगा इन डेली लाइफ, अब यहाँ आप कर सकते हैं योगा इन डेली लाइफ, या फिर आपका एक हेडिंग के रूप में, एक टाइटल के रूप में, मेन वर्ड्स के रूप में योगा क्या हो सकता है, कोई सी बात नहीं। हम आपको अभी इस पैसेज को ख़त्म होने के बाद आपको ज़रूर थोड़ा बहुत हिंट देंगे कि कुछ आप अपने स्तर से कर लें। नाउ योगा इन डेली लाइफ स्टार्ट वर्ल्ड वाइड इन योगा सेंटर्स। अब देखिए, एडल्ट एजुकेशन में भी योगा सेंटर, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में योगा है, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स क्लब में योगा है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में है, हेल्थ रिसोर्ट्स में। तो हमें योगा हर जगह सीखने को मिलता है। इट इज़ सूटेबल फॉर ऑल एज ग्रुप्स, ऐसा नहीं है कि केवल बच्चे करें, केवल नौजवान लोग करें, हर कोई करें, हर कोई, ऑल एज ग्रुप्स, हर कोई एज ग्रुप का करता है। द नेम itself indicates that yoga can be and should be used in daily life। इस तरह से कंक्लूजन निकल करके आता है कि योगा जब इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना महत्वपूर्ण है,
इतना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो क्यों न इसे दिन प्रतिदिन किया जाए, डेली लाइफ में क्यों नहीं इसको जोड़ लिया जाए। तो ये पैसेज आपके लिए बड़ा ही एक तरह से इनोवेटिव है, आपको मोटिवेट कर सकता है। और ख़ास करके इस लॉकडाउन के समय में तो आपको पास कुछ समय ज़रूर है, तो आप इसमें योगा का भी काम करिए, अपनी बुद्धि को भी बढ़ाइए, कंसंट्रेशन करिए, मेडिटेशन करिए, हाँ, कंसंट्रेट होइए, अपने सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान दीजिए, तो इससे आपको लाभ मिलेगा। चलिए आगे के पैसेज को, पैराग्राफ को देखते हैं। द एक्सरसाइज लेवल्स हैव बीन वर्कड आउट इन कंसल्टेशन विथ डॉक्टर्स एंड फिजियोथेरेपिस्ट्स। इसे अगर मान लीजिए किसी को कोई एलिमेंट है, कोई बीमारी है, ठीक, तो फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो कुछ एक्सरसाइज बताता है आपको। हर प्रकार का एक्सरसाइज योगा है। कहने का सेंस ये है कि आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो पार्ट ऑफ योगा कहलाता है। योगा केवल प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति और वो श्वास करना धरना, ये मात्र इतना ही नहीं है। योगा का बहुत विशद रूप है। हर प्रकार के एक्सरसाइज को योगा में समाहित किया गया है। योगा तो कुछ प्राणायाम को लेकर के है, लेकिन इसके साथ साथ तमाम प्रकार के शारीरिक फिटनेस, बॉडी फिटनेस एंड एक्सरसाइज को भी उसमें इंक्लूड किया गया है, हैं? तो वो साइकेट्रिस्ट जो होता है, जैसे मान लीजिए किसी का दिमाग डिस्टर्ब चल रहा है, ठीक है, और किसी का कोई परेशानी आ रही है, तो वो लोग ठीक करते हैं इस तरह से। कैन देयरफॉर विथ ऑब्जर्वेशंस ऑफ द स्टेटेड रूल्स एंड प्रिकॉशंस, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं, तो उनका भी ठीक हो जाता है। बी प्रैक्टिस्ड इंडिपेंडेंटली एट होम बाय एनीवन। भाई अपने घर पर रह करके आप योगा करिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्लब में ही जाइए, तभी आप योगा को कर सकते हैं। योगा इन डेली लाइफ इज़ ए होलिस्टिक सिस्टम। एक बार और इसने बताया होलिस्टिक सिस्टम है। क्या है? विद द मीन्स इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन नॉट ओनली द फिजिकल बट आल्सो द मेंटल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। तो सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में काम करता है, हाँ, सारे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में ये काम करता है। नाउ पॉजिटिव थिंकिंग, प्रिजर्वेंस, discipline, orientation towards the supreme prayer, as well as kindness and understanding from the way of self knowledge and self realization, यहाँ से प्राप्त होता है। तो सेल्फ नॉलेज और सेल्फ रियलाइजेशन भी हमको योगा से प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि आप इस चीज़ को अपने से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वैसे अगर आप बहुत ज़्यादा पैरासाइट ना हो तो बड़ी अच्छी बात है। फ़िलहाल हम चाहेंगे कि आपको थोड़ा बहुत इसमें कुछ मैं करा दूँ, ठीक है। तो अभी आपने जो अंडरलाइन किया है सो तो किया ही है, कुछ हम अपने तरफ से भी आपको लिख दे रहे हैं, जिससे कि आप इसका प्रैक्टिस अपने घर पे कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी आप इसमें योगा के ऊपर पढ़ा है, तो अब मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मैं टाइटल आपको देना चाहता हूँ। टाइटल लिख लीजिए। टाइटल हमेशा टाइटल को कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, ठीक है। योगा, इसको हम लिख देते हैं नीड ऑफ द आवर।
योगा नीड ऑफ द आर, ठीक है। योगा है नीड ऑफ द आर, मतलब समय की आवश्यकता, नीड ऑफ द आर। तो अब आगे चलते हैं। ये पहला मेन पॉइंट आप लिख सकते हैं, फर्स्ट मेन पॉइंट आप लिख सकते हैं, ओरिजिन ऑफ द वर्ड, origin of the word योगा। कहाँ से ओरिजिन हुआ? तो ये 1.1 में आ जाइए, ओरिजिनेट फ्रॉम संस्कृत, ओरिजिनेट फ्रॉम संस्कृत, ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम संस्कृत। अब 1.2 का क्या कह रहा है? जैसे अभी आपने निशान लगाया है, मीन्स टू ज्वाइन, टू यूनाइट, मीन्स टू ज्वाइन, टू यूनाइट, ठीक है, टू ज्वाइन, टू यूनाइट। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि ये क्या क्या देता है। जैसे अभी आपने इसको देखा तो यूनाइट। अब हम आपको ये कर सकते हैं, जैसे आपने अभी अंडरलाइन लगाया है कि इफ़ेक्ट, ठीक है। तो मान लीजिए हमने दूसरा पॉइंट डाला, हाँ, कि इफ़ेक्ट्स ऑफ योगा एक्सरसाइज, हैं, क्या है? इफ़ेक्ट्स ऑफ इफ़ेक्ट्स ऑफ योगा एक्सरसाइज, योगा के एक्सरसाइज का इफ़ेक्ट क्या है। तो अब इसमें हम कई पॉइंट्स दे सकते हैं। जैसे हमारा पॉइंट क्या हो सकता है, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं। आप इसमें पहला पॉइंट डाल दें, 2.1, अगर 2 है तो 2.1, ठीक है। तो 2.1 ब्रिंग बॉडी, कॉमा दे दीजिए, माइंड, कॉन्शियसनेस एंड सोल टू बैलेंस, माइंड एंड सोल टू बैलेंस, कह दीजिए, टू बैलेंस, सोल टू बैलेंस। नोट कर ले रहे हैं? कर लीजिए, मैं हट जाता हूँ, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट 2.2 में आइए, देखिए, असिस्ट इन, असिस्ट assist in coping with coping with all age group, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि हम
इन सब चीज़ों पर किस स्तर से आ रहे हैं, कैसे हम इनके पॉइंट्स को बना रहे हैं। तो अब हम बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बनाएंगे, आपको थोड़ा सा ये हिंट दे करके हम आगे बढ़ने चाहते हैं। अब अगर हम तीसरे पॉइंट पे जाएं 2.3 पे, तो हम बात कर सकते हैं डेवलप ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग। ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, डेवलप ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो तुरंत। अब देखिए, अब नोट मेकिंग यानी कि इंडेंटेशन में हमें जो मैंने सेकंड का थर्ड पॉइंट लिखा है, उसमें कुछ और हमको सब पॉइंट्स मिल रहे हैं। इसलिए कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल रहे हैं जिनको हमें बताना ज़रूरी होता है। तो उन सब पॉइंट्स को मिलने के बाद मैं अपने इस आज के टीचिंग को बंद करूँगा। इसके बाद आप जो बाकी बचे हुए हैं इसमें जो पार्ट्स हैं, उसको आप होमवर्क के रूप में कंप्लीट करिएगा। ऐसा मेरा समझना भी है, कहना भी है। तो चलिए, इंडेंटेशन के रूप में 3.1.1 सॉरी 2.3.1 जस्ट ए मिनट प्लीज़, एक मिनट दीजिए। 2.3.1 मैंने सेकेंड पॉइंट का थर्ड पॉइंट लिखा है, और थर्ड पॉइंट का ये इंडेंटेशन है, यानी कि 1। ठीक है, इसमें अब हम बता रहे हैं कि आवर सेल्व्स, डेवलप किसको कहता है? आवर सेल्व्स। 2.3.2 है इंडेंटेशन के रूप में द पर्पस ऑफ लाइफ। ठीक है, द पर्पस ऑफ लाइफ। अब 2.3.3 का हम लिखते हैं। 2.3.3 का ये इंडेंटेशन है, ऐसे इसी यही सब पॉइंट है। अब यही सब पॉइंट है आपका। ठीक है, तो आर रिलेशनशिप विद गॉड, आर रिलेशनशिप विद गॉड, इसको कर दिया। अब आप आगे जैसे पॉइंट 2 थे, अब पॉइंट 3 पे आ जाइए। पॉइंट 3 के लिए आप द सिस्टम योगा इन डेली लाइफ। ठीक है, अब इसके आप पॉइंट्स दीजिएगा। हैं 3.1 3.1 में क्या पॉइंट दे सकते हैं? टाट वर्ल्ड वाइड, टाट वर्ल्ड वाइड, ये हमको वर्ल्ड वाइड बताता है। ठीक है, अब इसके बाद जो भी आपके पॉइंट्स होंगे वो असाइनमेंट के रूप में आप उसे कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।